Three. All right. Hello, everyone. Welcome to another episode of the Replay Pod. Today we have Salman and Bilal, जो हमारी तरह ही like avid cricket fans हैं. They are from Pakistan, and the match coming up on Sunday, India versus Pakistan. We are absolutely excited to have them, and we'll talk about the match as well as like India-Pakistan cricket. Like lot has changed in lot of like last decade. We'll touch base on everything, and the reason हम लोग ये कर रहे हैं is like sometimes we talk about India Pakistan और हम one sided बात करते हैं, we don't get to see the real side of the Pakistan cricket like जो हम मीडिया में देखते हैं. Is biased, so we'll ask Salman and Bilal to shed light on what is going on in Pakistan cricket. So Bilal, Salman, welcome to our podcast. Thank you for doing this. कैसे हैं आप लोग? Of course. Thank you, Ankit. Thank you for having us. Like Ankit said, we're old friends, but Yeah. thank you for the opportunity. Yeah, this is going to be great. Bilal? No, yeah, I love the fact that you've kind of like opened your podcast to kind of like people from different countries and like supporting different teams. यही होता है कि हम लोग भी ना एक whenever these tournaments happen, we're only seeing one side of the story Yeah. और फिर वो चीजें नहीं पता चलती. तो it would be interesting. I'm looking forward to it. Thank you for inviting us. And to add to that, एक साइड की कंट्री की मीडिया पूरा बायस्ड चीजें दिखाएंगी कि ऐसा ये है, ऐसा वो किया, पाकिस्तान ने ऐसा किया, इंडिया ने ऐसा किया. तो हमें एक थोड़ा रॉ ओपिनियन, एक्चुअल ओपिनियन, क्या आप लोग को एज अ इंडियन फैन, एज अ पाकिस्तानी फैन, what are your views on some topics, right? On the cricket, how is Pakistan doing, the youngsters and all that stuff. So yeah, we can dive deep into this. क्योंकि मीडिया के अकॉर्डिंग तो मैच डिसाइड हो गया दोनों तरफ. So, even before it is played. So In media के according, last Champions Trophy का भी final decided था. आपको याद हो तो. बिल्कुल बिल्कुल. But yeah, defending champions, Pakistan. Yeah, And first yeah, game. I don't think it counts anymore after like freaking कितने साल हो गए. I was in 7 साल हो गए. Pakistan. Like I was in 2017. I was working in Pakistan. Since then, I have moved to the US. I got married, have had kids. I have finished 2 degrees. So I don't think it counts being defending champions. I would say right now, like yeah, I don't think that counts. कि भाई defending champion होने से फर्क पड़ता है. But apart from that, no, we're excited. Yeah, any tournament kind of on home soil. Since the history we've had, kind of with cricket in Pakistan, so we're excited कि tournament हो रहा है and at that kind of level, so excited about it. So let's see क्या होता है. I hope Pakistan makes it through the group stages, but let's see. So yeah, भाई I think overall. दोनों साइड ही चेंज हो गई हैं. Like whatever the Indian team was in 2017, like 2018, most of the players have retired or they are kind of on the verge of retiring. A lot has changed. But you talked about like international tournament coming to Pakistan after a long time. What's up with the crowd? Like I was looking at watching a couple of matches. Like there's no one showing up. I would say crowd. भाई मतलब वही वाली बात है ना. If everyone's like trying to just earn money and मतलब घर ही नहीं चल रहा जिसका, तो क्या आके मैच देखेगा. तो हाँ, it's lacking behind, especially its group stages. So maybe it's because of that, but hopefully it's gonna be better in kind of like the for. I'm sure India Pakistan वाले match में you'll see a full crowd. But yes, I agree. समान नहीं. और तुम्हारे अभी तो मैचेस कहाँ हुए? लाहौर में हुए ना ज्यादा. अभी लाहौर में है. और बट डू यू थिंक लाइक क्रिकेट का फैन बेस या वो कम हुआ है, उस पर इफेक्ट भी हुआ है? आई नो पीपल हैव बीन बिजी, थोड़ा इकोनॉमी भी फैक्टर आ जाता है, बट क्या फैन या क्या स्टारडम वो कम हुआ है इन पाकिस्तान? I don't think so. It's ये जो basically मैं तो कहूँगा उनके opposite, थोड़ा structure भी ज़्यादा आ रहा है और cricket as a game has been growing. And I think subcontinent is the only place in the world जहाँ पे cricket is not been in decline. And this is about the grassroots cricket. Obviously, there's structural issues in bringing that grassroots cricket above up to a certain level, but personally speaking, I don't feel like, I don't have any data to back this up, but I don't feel like it's declined at all. I think Salman backed it up. ठीक है. शुरू क्राउड्स में जिस तरह तुम्हें याद है वो जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी शुरू में सब ये बोल लेते कि क्राउड, वो अलग बात है कि आपका स्टेडियम ही मतलब 100,000 लोगों वाला है तो उसमें लगेगा कि एम्प्टी है. बट I just think it's just early in the tournament and it happens and like it happens. So I think it's going to be fine kind of moving forward. I think one thing जो इंडिया ने किया था उस टाइम पे कि like they started distributing tickets की schools में भेज दो just to get people, like वैसे ही पैसे नहीं आ रहे हैं तो फ्री में ही टिकट बांटो. Something like that happening in Pakistan की कुछ clubs को schools को टिकट बांट के at least get the game going.
I'm sure they're going to do all of that because I mean, इतना बड़ा tournament आया है after so long, they wouldn't want कि यार मतलब highlights के अंदर नजर आ रहा है कि जी seats empty. I'm sure they'll figure this out. Should not be a big thing to figure out. Yeah, or since like obviously this is we're a nation who are not used to hosting international tournaments, right? उसकी वजह से होता ये है कि जो मैनेजमेंट किंग्स हैं, इट टेक्स टाइम टू वर्क दोज आउट कि Yeah. एंट्रेंस कहाँ से होगी, ट्रैफिक कैसे कोऑर्डिनेट होगी. सो इन माय एक्सपीरियंस व्हाट पीपल डू इज दे वॉच अ कपल ऑफ गेम्स और देखते हैं लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है Okay. जाने एंट्रेंस में, सिक्योरिटी चेक्स में, Interesting. and then it ramps up. So people, teams, countries who are used to doing sporting events, उनकी तो एक flow बना होता है, crowd control होता है. I think Pakistan, it takes a couple of matches for people to get confident कि यार हम लोग will not be stuck in lines for 10 hours. So they start going. Same with the team, right? It takes like a couple of matches to get going. I think Salman ने pretty much ना summed it up because I remember मैं पिछले पाकिस्तान में एक साल भी गुजार के आया हूँ ना, तो whenever there was any international match, like from 2 or 3 kilometers away, city was like cordoned off. You can't even. So for somebody who's trying to go to the game, you got पहले वो कोई taxi लेके जाओगे to that boundary, then you're gonna cross it, then you're gonna either walk or take some sort of other rickshaw and go. So it's a lot of hassle, but I'm sure they'll figure those kind of things out in the process ताकि लोगों को लेके आए. But yeah, I think Salman pretty much summed it up क्या मसला क्या है इस वक्त पाकिस्तान में. तो Right. That's ये है. interesting. So एक और क्वेश्चन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड. जैसे इंडिया में इंडियन डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है रणजी, राइट? And Syed Mushtaq Ali tournament and bunch of others, and obviously IPL as well. So we have a similar for IPL, we have a PSL in Pakistan, right? तो बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में आपका क्या वो है कि is it up to the mark? Is Pakistan creating those raw talents that they were used to before? Where is Pakistan lacking in terms of talent? मैं एक स्टार्ट करता हूँ सलमान, पे तुम ऐड करना. एक तो यार मुझे लगता है जो थोड़ी सी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंस्टेबिलिटी रही है ना, उसकी वजह से काफ़ी मसले हैं. आई डोंट नो इफ यू फॉलोड. Yeah. आई थिंक रमीज राजा ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया था डोमेस्टिक क्रिकेट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम लाइक पहले ना, लाइक इन पाकिस्तान हाउ इट यूज्ड टू हैपन इज वी हैड लाइक different teams like PIA, WAPDA, and they used to kind of take That's take part in a tournament. उसने कहा we'll change this because उसके अंदर फिर every department की politics आ जाती थी, तो that was like difficult to like imagine somebody coming from Karachi might not be able to get through because the departments he can qualify for aren't doing a good job of bringing the Okay. talent up, right? So I think Ramiz Raja changed that. I think he, again, I don't follow domestic too much, but something I think it changed to like region based. ताकि एक तरह स्टैंडर्डाइज हो जाए. बट सिंस हमारे कौन आए, आई डोंट इवन रिमेंबर. आई थिंक लास्ट जो भी आए थे उन्होंने जो है ना दे रिवर्टेड बैक. तो आई थिंक देयर हैज बीन सम इंस्टेबिलिटी देयर. एंड देन फिर ये भी होता है कि इवन दो इफ देयर इज टैलेंट यू नीड टू हैव अ गुड क्या कहते हैं सिलेक्शन कमिटी हु कैन गिव चांसेस टू दोज पीपल. तो इतना पाकिस्तान खेलता ही नहीं है जाके कि यू विल गिव दोज अपॉर्चुनिटीज टू दोज न्यू पीपल टू कम इनटू द नेशनल टीम. तो ये सिलेक्शन कमिटी में डू यू थिंक देयर इज सम पॉलिटिक्स इन्वॉल्वड एज वेल? बिकॉज़ सब जगह कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स तो है ही. क्योंकि माय क्वेश्चन इज व्हाई आरंट वी सीइंग यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजी, ऐसे टैलेंट मिल क्यों नहीं रहे? काफी टाइम हो गया, राइट? तो पाकिस्तान कहाँ पे लैक कर रहा है? मतलब इज इट लाइक सिलेक्शन कमिटी में बहुत ज्यादा बायसेस और पॉलिटिक्स है? देखो भाई, पॉलिटिक्स हमारे यहाँ तो होंगी, ठीक है ना. पॉलिटिक्स के बगैर तो हमारा मुल्क नहीं चलता. तो हमारा क्रिकेट बीइंग लाइक द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स होगी. आई मीन यू कैन सी राइट जो मेरे ख्याल से पीसीबी की जो पोजीशन है चेयरमैन वाली, इट डजंट गिव दैट मच मनी. बट व्हाई डू पीपल लाइक आर क्रेजी फॉर दैट पोजीशन? क्योंकि इट्स पावर यार. मतलब ये पीसीबी के चेयरमैन है आप एंड ऑल दैट. यार समा, तुम क्या कहोगे इस पे? मैं आई हैव माय ओन पर्सपेक्टिव. आई थिंक जो स्ट्रक्चर पाकिस्तान में है वो जैसे जैसे आप टॉप पे जाते जाते हैं वो ज़्यादा क्लियर होता जाता है. और जो एलिगेशंस ऑफ पर्ची हैं, एंड अगेन बाय द वे आई वांट टू प्रेफेस ऑल ऑफ दिस बाय सेइंग कि हम लोग बहुत एमेचर फैंस हैं. तो इफ पीपल आर ऑफेंडेड बाय आवर ओपिनियंस, दिस इज माय आवर पर्सनल ओपिनियन. वी डू नॉट इन एनी वे रिप्रेजेंट any group opinions from Pakistan. So in personally speaking, I think जो lower tier of Pakistan cricket है उसमें there's a lot of structural issues. एक लोगों को there's not enough incentive, पैसा नहीं है.
कि अच्छा टैलेंट निकले और वो आए। बिलाल एक चीज में ऐड करूंगा, देखो मुझे मुझे फिर भी ये लगता है कि देखो पिछले अगर तुम 5 साल में देखो तो लाइक वी हैड गुड नेम्स, शाहीन अफरीदी और आपके हारिस रऊस। लाइक अरे आई थिंक वी रियली डिड गेट गुड पीपल आउट यार, दीज आर पीपल हु हैव शोन अमेजिंग, मैंने मैंने एक चीज मतलब देखी, लेकिन सिंस यू टॉकिंग ऑन दैट, लाइक कि आपके बॉलर्स तो आते हैं 20-22 साल के, बट मैं देख रहा था आपका स्क्वाड, आपका यंगेस्ट बैट्समैन इज इमाम उलक, ही इज लाइक 29 and a half, right? तो मतलब, and he has been playing for long time, so like where are those like Jaiswals or Gills that India produced in the batting? यार अब बैटिंग में मतलब इसका कोई अच्छा आंसर तो नहीं है यार, यही है कि हमारी बैटिंग हिस्टोरिकली थोड़ी सी वीक रही है। आई थिंक लाइक जो भी कमिटी रही है, कैप्टनसी रही है, जो भी मतलब लीडरशिप रही है, दे हैव ट्राइड टू स्टिक विद दैट कोर Mhm. ग्रुप। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो, जो अभी पाकिस्तान की वो हुआ है अभी इंग्लैंड से जो टेस्ट हुआ था, हाँ, याद है फर्स्ट मैच कैसे हारे, उसके बाद दे काइंड ऑफ लाइक Came back. बाबर आजम में ख्याल से किस किस को बिठाया था, आई डोंट इवन रिमेंबर, और वो उससे चेंज हो गया। तो कभी कभी यू डू हैव टू लाइक सिट डाउन, लाइक मतलब बेंच दीज काइंड ऑफ बिग नेम्स। And और that was a वो bold call कि दैट इतने वाज बड़े बोल्ड बड़े कॉल। नामों को आप ड्रॉप कर रहे हो, उसके बाद जीत गए, राइट? पर जो बंदा आया सेंचुरी मारी, like कामरान गुलाम was like the या top scorer, and he's not playing in this Champions Trophy, right? He's यार अब outside the यही team. तो थोड़ा सा हमारे यहाँ ये सिलेक्शन कमेटी वाली चीजें हैं। अब अगेन देखो, हम तो भाई एक छोटे फैंस हैं, हमें तो एग्जैक्टली नहीं पता पीछे एग्जैक्ट क्या पॉलिटिक्स है, क्या वो बाबर आजम की Mhm. पॉलिटिक्स है, क्या वो रमीज राजा की थी, वो मोहसिन नकवी की है, किसकी है, वी डोंट नो, एंड दैट स्पेकुलेशन, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आई जस्ट थिंक दैट जब भी आपकी लीडरशिप अनस्टेबल होती है ना, एंड देयर इज नो क्लियर विजन, चाहे जो भी Mhm. नीचे हो आगे पीछे हो ना, इट्स नॉट गोना गिव यू मतलब जैसे यू यू हैव टू बिल्ड अ टीम एंड इम्प्रूव इट ग्रेजुअली। वो हो ही नहीं पाती क्योंकि हर थोड़े दिन बाद कोई नया बंदा आ जाता है, वो चेंज कर देता है हर चीज। तो आई Mhm. से यही है, इट्स ऑल लीडरशिप। यार बैटिंग के लिए तो हमारा, मैं तो पाकिस्तान का कल्चर मैं बताऊं, जो फास्ट बॉलर है ना वो सुपरस्टार है। इट्स ऑन फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग को मतलब एक थोड़ा सा सेक्सीनेस एसोसिएटेड है फास्ट बॉलिंग के साथ। तो और दूसरा हम लोग ज्यादा, वो हमारी बहुत ज्यादा रिलायंस है, अगेन आई थिंक इट्स कॉमन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, ऑन लाइक फ्लैट पिचेस और टेप बॉल क्रिकेट। तो उस वजह से हमारी बैटिंग डेवलप ही नहीं होती। एक तो उसको इतना इतना ग्लैमराइज भी नहीं करते जितना हम फास्ट बॉलिंग को करते हैं, इन आवर कंट्री एटलीस्ट। तो लाइक ऐसा क्यों है, लाइक फॉर एग्जांपल कि क्या ये पुराने बॉलर्स की विजिबिलिटी ज्यादा है, लाइक यू सी वसीम अकरम, वकार यूनिस अ लॉट, लाइक here sort of blowing in the wind, and Shoaib Akhtar, so is that the kind of the glamour that people go for? देयर इंस्टाग्राम अकाउंट्स, अभी भी तुम जाओगे देखोगे यार ये नया लड़का 150 पे फेंक रहा है, रील्स दिन रात आ रही होती हैं। वो हमने एक टैलेंट ढूंढा है। बैट्समैन बैटिंग के बारे में देयर इज नोबडी हु इज बैटिंग। तो एक और जो अच्छे बॉलर होते हैं उनको देखने के हम्म। लिए स्टेडियम के बाहर खड़े होते हैं, जंगलों से देख रहे होते हैं। तो बॉलिंग इज लाइक ग्लैमराइज थोड़ा सा, मेरे ख्याल से। यार देखो, बॉलिंग में चाहिए एग्रेशन, ठीक है, बैटिंग में चाहिए पेशेंस। वो मुल्क मुल्क भी तो फर्क है ना, हम लोग आपको पेशेंस वाले लगते हैं कहीं से। बट ये ऐसा होना भी चाहिए, राइट? क्रिकेट इज सच अ गेम जो बैटर्स को कितना ज्यादा पब्लिसिटी, हर चीज में बैटर्स को एडवांटेज है, राइट? बॉलर्स आर काइंड ऑफ अंडर शैडोड, राइट? तो आई फील इट्स इन अ गुड वे, इट्स गुड इन अ वे, राइट? आई वुड से सो, क्योंकि देखो मतलब पिछले कितने सालों से तुम यही देख रहे हो, और बैटिंग की इजी की जा रही है कि भाई मतलब आपके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने 350 चेस कर लिया, सोचो तुम। तो मतलब तो यही हो रहा है कि यार बैटिंग इज बिकमिंग ईजियर। तो आई लव द फैक्ट दैट पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है, अच्छी से मतलब कि उसमें टैलेंट आता है। बैटिंग ठीक है, आई थिंक विल ऑलवेज स्ट्रगल, बट आई वुड से आई एम स्टिल हैप्पी लाइक कंसिडरिंग वी हैव अ फ्यू टैलेंटेड पीपल लाइक बाबर आजम एंड वो क्या नाम है उसका छोटे का, जो भी आया है Rizwan, दूसरा टी टू, क्या नाम है उसका, भूल गया। Rizwan, नहीं नहीं, रिजवान तो है, वो जो दूसरा लड़का है साइम अयूब वगैरह, मतलब आई हाँ, थिंक हैव टैलेंट। अगेन यार थोड़ा और खिलाओगे इनको, हम लोग इतना खेलते भी नहीं है ये लोग जाके कि उनकी प्रैक्टिस बने और करें। लेकिन आई एम ओके विद लाइक एज अ फैन, आई एम ओके कि यार जहाँ बैटिंग है ना, ग्रोइंग अप लाइक 30-35 ईयर्स जो मैंने देखी है ना, उसमें आई एम ओके विद दिस। अच्छा, अच्छा, Bilal, you talked about the superstar of Pakistan cricket, Babar Azam. What's going on with him? He's still a talented player, right? क्या उससे क्या उम्मीदें थी कुछ साल पहले कि he is gonna be this, he's gonna be that? तो वो कहाँ पे प्रॉब्लम आई है? Is it like just too much pressure on him from the board? Is it just out of form right now? But ये बात तो set है, he is a talented player. He's a world class player. There is no debate about it. But what's going on?
यार मेरी एक टेक है ना, सलमान भी ऐड कर सकता है। यार एक तो भाई बात है भाई, मैं लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट लाइक बुरा भला कहते हैं उसको बाबर को। आई डोंट, मैं यार एक हमारा एक स्टार है, निकला है, लाइक ही इज लाइक आई एम नॉट सेइंग कि एनीवेयर क्लोज टू फैब फोर और तुम्हारे विराट कोहली एनीवेयर क्लोज किंग टू बाबर। किंग बाबर। लेकिन यार एटलीस्ट अगर एक कॉन्वर्सेशन में बात आ रही है, दैट मीन्स कि somebody has made it to that point where you Yeah. can at least have a conversation कि यार कभी ये बन सकता है। तो आई लव दैट, तो आई एम नेवर गोना लाइक शिट ऑन बाबर आजम। अच्छा, आई जस्ट थिंक यार जो कैप्टनसी थी ना, इट वाज थ्रोन ऑन हिम। एंड सेकेंडली, मतलब या तो फिर पीछे लीडरशिप मेंटेन होती, उसको वो सपोर्ट करते। उस दौरान लीडरशिप इतनी चेंज हुई, इनकंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से वो हारना शुरू हुए। इफ यू रिमेंबर 2021 वाला जो T20 का वर्ल्ड कप था, जिसमें इंडिया को वो 10 विकेट से हराया था, आई वुड से दैट वाज अ गुड टाइम, इवन दो आई डोंट थिंक बाबर वाज द कैप्टन, वाज हाँ कैप्टन ही था मेरे ख्याल से, बट दैट वाज अ गुड टाइम। उसके बाद जब ये रमीज राजा गए, उसके बाद से वो नीचे आपका डाउनफॉल आना शुरू हुआ है वो। और आई एम नॉट सेइंग कि वो बाबर आजम की वजह से आया, आई एम श्योर आया होगा, देयर मस्ट हैव बीन सम ट्रेट्स अबाउट हिज लीडरशिप, जैसे कहा जाता है कि ही इज अ डिफेंसिव कैप्टन एंड ही शुड बी मोर अग्रेसिव, एंड ही एंड हिज सम ऑफ हिज like decisions have been questioned in like finals and stuff. But I don't think it's just him to blame for all those losses. It's the lack of leadership behind him, lack of support behind him that caused it. But I do think, coming back to your point, KR, I think at the end of the day it was just the pressure of the full captaincy and everything that was too much for him. और अच्छा, बीच में भी तो फिर देख रहे हो, वो याद है वो उसको बनाया, शाहीन अफरीदी को शाहीन को एक दिन एक के लिए सीरीज के बना लिए। दिया, हटा दिया यार। लाइक हाउ कैन यू डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स एंड एक्सपेक्ट समबडी टू लाइक कंटिन्यू ऑन लाइक दैट, राइट? तो मैं कहूँगा सारी चीज़ें वो, ही वाज जस्ट अनलकी कि वो एक ऐसे टाइम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट में था कि पीछे लीडरशिप इतनी वीक थी और इतनी अनस्टेबल थी कि वो ही गॉट मेस्ड अप बिकॉज ऑफ इट। राइट नाउ व्हाट आई वांट इज डोंट गिव हिम द कैप्टनसी एट ऑल, लेट हिम बी मतलब अ गुड बैट्समैन जो वो है, और लेट हिम मतलब उसको वापस ऊपर लेके आओ। दैट्स काइंड ऑफ व्हाट आई माय से ऑन इट। लाइक एक और चीज मैंने देखी है पाकिस्तान क्रिकेट में, जब कैप्टनसी रोटेट होती है तो जो कैप्टन बन चुका होता है, इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू जेल बैक इनटू द टीम। जैसे इंडिया में क्या होता है कि थोड़ा इशू होता है, बट देन वंस द कैप्टन इज अपॉइंटेड एवरीबॉडी काइंड ऑफ गेट्स अलोंग एटलीस्ट रिलेटिवली ऑप्टिक्स वाइज। पर पाकिस्तान मुझे लगता है कि जैसे ही कैप्टन बदलता है, द अर्लियर कैप्टन लाइक ही हैज हिज ओन ग्रुप, राइट? इट्स हार्ड टू जेल बैक एज अ प्लेयर। ये तो भाई हिस्टोरिकली आप देख लें, वसीम अकरम, वकार यूनुस और सब इनकी लड़ाइयाँ ही मशहूर हैं, राइट? तो आई एग्री, ठीक है ये सब होगा। इंडिया को ऐसा रिस्पेक्ट कि जिस तरह धोनी से धोनी के बाद कौन आया? धोनी के बाद विराट। आई थिंक विराट कोहली था ना, मतलब यस ही वाज काइंड ऑफ यस। लाइक इन हिज वो। उसके बाद देखो विराट कोहली की भी कैप्टनसी वाजंट वेरी कोई बहुत या कोई चीज, कुछ लेकिन दिखाने के लिए नहीं लेकिन है। उस वक्त उन्होंने उसको इतना क्लीनली किया कि रोहित या शर्मा आए, रोहित शर्मा ने आके आपको पता कितने कितने वर्ल्ड कप जिता दिए। और अब सवाल उठता है कि भाई अब आप लोग भी कोई नया ट्रेन कर रहे होंगे, जो तुम आई रिस्पेक्ट ये इंडिया इन एक्चुअली ट्रेनिंग दिस कैप्टन। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, हाउ यू कैन सपोर्ट अ कैप्टन एंड हाउ यू कैन लाइक मेस हिम अप। तो या भाई ये मेरी kind of टेक है उस पर। आई सलमान, मीन व्हाट डू यू थिंक? हाउ कैन I agree. मेरा मेरा ओपिनियन इज सेम। एक तो बिलाल इज सेइंग कि जो लीडरशिप की इनपुट है वो डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, आई एग्री। इवन वो डिस्ट्रक्टिव ना होती, आई डोंट थिंक इट्स कंस्ट्रक्टिव टू अ पॉइंट कि वो एक अच्छी टीम बना सकती है। दे डोंट हैव द रिसोर्सेज इन प्लेस टू। देखो, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ प्रेशर, बहुत मेंटल गेम है। इट्स अ वेरी मेंटल। आपका लीडर जो है, अगर डे वन से, अभी ये जो न्यूजीलैंड की गेम में हमारे साथ हुआ है, आपकी बॉलिंग डिफेंसिव थी, आपकी बैटिंग डिफेंसिव थी। आप पहले पहले 19 बॉलों में आपने 6 रन बनाए हैं दोनों ने आके। वो अगला कैप्टन कह रहा है यार हम तो 260 बनाने आए थे, इनकी बॉलिंग देख के, इनकी फील्ड प्लेसमेंट देख के हमने इतना ज्यादा बना लिए, क्योंकि वो फील्ड प्लेसमेंट इतनी डिफेंसिव थी। तो लाइक नोबडी टोल्ड देम कि यार ट्राई टू गो अग्रेसिव, लाइक इट्स अ नेगोशिएशन ऑन द फील्ड। you're trying to show you're trying to signal something to your opponent. So there's no instruction behind it. जो mental stability चाहिए होती है वो तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, बट अगर ना भी करें, they're not putting people up. जिस तरह इमरान खान तो एक force of nature था ना। You need somebody who's like, even if our players are good, like they have skills. Well, Babar Azam is a skilled batter, right? But this needs to be some strategist behind him, teaching him how to handle pressure, teaching our captain how to set the field, to be aggressive or to pull back. कोई थॉट मुझे नजर नहीं आ रही, शायद हो, आई डोंट नो। So Salman, after Rizwan, आपके हिसाब से, as a Pakistani fan, who do you think we should lead the squad? And same question for Bilal. Bilal, you go first. यार मेरा इस पे ना, मेरी एक टेक है, आई थिंक शाहीन अफरीदी। लेट मी टेल यू व्हाई।
देखो उसने पीएसएल में एक पीएसएल जिताया अपनी टीम को एज अ कैप्टन, ठीक है, लेकिन लीव दैट असाइड। माय पर्सनल पर्सनल ओपिनियन है कि यार जो एक पाकिस्तान टीम का कैप्टन ना हैज टू बी अ वेरी एग्रेसिव कैप्टन। हिस्टोरिकली वही सक्सीड किया है। और बॉलर्स जो होते हैं ना, फास्ट बॉलर्स, दे आर नेचुरली वेरी एग्रेसिव, ठीक है। आप बाबर आजम जैसे बैट्समैन को लोगे, ह्यूज डिफरेंस है, उसने भाई 100 बनाना है 200 बॉलों पे, ठीक है। दैट देयर अ माइंडसेट का डिफरेंस। आई रियली थिंक अगर शाहीन को थोड़ा सा ग्रूम किया जाता, उसको उसको जरा उस पर पैसा पैसा नहीं, मतलब टाइम लगाया जाए, तो आई रियली थिंक ही कुड बी समथिंग, क्योंकि ही इज स्मार्ट, ही डज लुक लाइक, अगर तुमने पीएसएल वाली उसकी वो विक्ट्री देखी हो, मुझे याद नहीं आ रहा कब की है, लेकिन ही डज लिसन टू एडवाइस, ही इज नॉट, मतलब आप कहते हो कि मतलब कि नहीं वो जो है ना, ही वोंट लिसन टू एनीवन, बट आई थिंक ही इज अ स्मार्ट प्लेयर, एंड if he gets the right support, I think he could be someone. Although मैं कहता हूँ रिजवान भी इज अ गुड, मतलब मुझे लगता है रिजवान इज अ गुड मिडिल, क्योंकि उसकी बैटिंग में अगर आपने देखा हो, देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन ही हैज ब्रॉट इट अप एंड लाइक ट्राइड टू गो फॉर अ हायर स्ट्राइक रेट, तो मुझे लगता है ठीक है, रिजवान अगर चल जाता है तो आई टोटली सपोर्ट हिम ऑन दैट। But I think I kind of agree. We'll get back just a minute, Salman. So I agree with you. आजकल देखो आप, जसप्रीत बुमराह हमारा कैप्टन है. Patrick Cummins, he's probably like the best player at the moment in world cricket. Fast भाई bowler, ही हैज right? अचीव्ड एवरीथिंग, क्या रह गया है बता दो, हर इंडिया में चीज. आके सब कुछ हुआ कर दिया है उसने। या उसके लिए तो मैड रिस्पेक्ट है. बंदा जहां जहां खेलता है हर जगह जीत जाता है. तो we see so many players, so many bowlers who are performing so well with the leadership. So I think I agree with your thought. But yeah, go ahead, Salman. What are your thoughts? I 100% agree. मेरे पास कोई additional चीज ऐड करने को नहीं है. I'm just gonna say कि I envision Pakistan team's energy to match the energy of like Amir Khan, Mohammad Amir, Naseem Shah, हारिस, इनकी जो एनर्जी है ना, और तुम दूसरी साइड पे देखो जो हमारे बैटर्स की एनर्जी है, वो completely different है. So who you put in the driver's seat basically determines what the energy of the team is going to be. Will be rash, will probably lose more matches, but I think eventually that matches our vibration more than what we have right now. Other thing that I was thinking, like जैसे हम मीडिया में देखते हैं, like all the Pakistani greats, like they talk a lot about cricket में क्या चल रहा है. Like why aren't they coming back and supporting the cricket? Like I don't see, like, or maybe like there's a politics and they are not kind of welcome there, but like why Wasim Akram, Waqar Younis, they're not kind of joining the team and coaching them, like, and यार थे ना, because जैसे देखो वकार यूनुस, मिसबाउल हक, वर दे वर देयर अंटिल द 2021 आई थिंक वर्ल्ड कप में थे। यार वही होता है, इन सब ने ट्राई किया हुआ है पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ ना, यू कांट रियली लाइक हर चीज जेन्युइन होनी चाहिए, वो होती नहीं है। तो क्या होता है कि एक एक पीसीबी चेयरमैन है, उनको एक कोच पसंद है, वो उनको लेके आएंगे, उनसे जब हड्डा हो जाएगा तो दूसरा आएगा। इट्स जस्ट लीडरशिप एट द एंड ऑफ द डे कि यार एक बंदे को लाओ, उसको थोड़ी देर रखो, एंड तो इन सब, आई थिंक इन सब ने ट्राई किया हुआ है, एंड दे ऑल एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज कि भाई ये हमारी बस की बात नहीं है। दैट्स व्हाट आई should Pakistan cricket be privatized? थिंक। Like, यार पोटेंशियली, आई मीन आप क्या, अगर डिसीजन ऑफ द पीसी, देखो डिपेंड करता I है ना, think अगर world अगर cricket dynamics बदल जाएंगे फिर उससे. हाँ वही ना, वो एक अलग, एग्जैक्टली वो एक अलग चीज, मतलब करने को किया जा सकता है। आई मीन दैट्स जस्ट like Indian cricket is mostly private, right? BCCI is private, like so like also about like maximizing value, right? No नहीं, personal. आई एग्री, आई नहीं किया जा सकता है इन माय ओपिनियन। यार ये पूरा सोचना पड़ेगा इस पे, लाइक आई थिंक देयर लाइक मल्टीपल एवेन्यूज के, फिर कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं कि आर दे थिंकिंग अबाउट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स एज अपोज टू मैक्सिमाइजिंग लाइक द वैल्यू ऑफ द टीम स्टफ, लाइक तो देखनी पड़ेगी। बट हाँ, पाकिस्तान में ज़्यादातर भाई जो गवर्नमेंट इदारों के साथ हो रहा है, तो प्रेफर्ड तो यही है कि प्राइवेटाइज हो तो बेहतर चलेगा। दैट्स द काइंड ऑफ जनरल सेंटिमेंट अराउंड दैट, तो हाँ हो क्योंकि सकता मैं देखा है कि पहले प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, फिर पीसीबी चेयरमैन है। चेंज हाँ होता है, हाँ और हाँ फिर सारे भाई, साथ में चेंज होते जाते हैं, मतलब ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है, मतलब मुझे लगता एंड है ग्राउंड स्टाफ भी कुछ कुछ जब होता तक होगा, विकेट चेंज हो कीपर जाता जब होगा तक लाहौर विकेट और कीपर उसमें. चेंज होता है ना, पीछे से प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, तो फिर वो फिर से शुरू हो जाता है, तो मतलब यही है, ऐसे ही है भाई। Politics. तो क्योंकि यार मैं जैसे इंडिया में बोल रहा हूँ, लाइक इंडिया में जो भी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट के अंदर है, दे आर नॉट डूइंग वेल. तो मुझे लगता है कि वो फिर वही है कि कोई पॉलिटिकल लीडर ही चेयरमैन बनेगा, प्रेसिडेंट यार बनेगा, नहीं और भाई, फिर जय शाह ने तुम्हारा, ही वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट में जिस तरह वो, मतलब ही डज इट एंड स्टफ, मतलब देखो
पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ ऑल दी स्पोर्ट्स, ठीक है। मेरी नजर में ना देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल विदाउट पॉलिटिक्स कुछ भी कर लो। यू हैव टू navigate this world, and and I respect India for being above like the England and Australia के बोर्ड। मतलब आई थिंक इस वक्त तुम लोगों का कोई बहुत पैसा कमाते हो एंड ऑल दैट, तो मतलब इट्स फाइन। मतलब आई वुड से कि यार वट एवर गेट्स योर टीम टू द हाईएस्ट लेवल, डू दैट, आई डोंट केयर। बट उसके बाद भी हमारे पास, चलो लास्ट ईयर हम T20 जीत गए, हम ऐसा तो नहीं कि हम सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स बहुत सारे जीत रहे हैं, राइट? तो यार पैसे से कोई रिलेशन नहीं है ट्रॉफी कैबिनेट का, करेक्ट? तो आई थिंक जैसे आपने बोला था कि लीडरशिप कोशेंट, एट द एंड सब लीडरशिप पे आ जाता है, और क्या क्या कल्चर है, क्या स्ट्रक्चर है, जैसे सलमान ने बोला, राइट? यार एट द एंड ऑफ डे आई थिंक समथिंग आई लाइक अबाउट द इंडियन टीम इज यार तुम लोग ना इंक्यूबेट करते हो अच्छे प्लेयर्स को। और तुम्हारा शुभम गिल गिल जो है, मतलब वो आराम आराम से लाए हो। आउट हुए डक पे बहुत दफा आगे पीछे, लेकिन गेव इन द, अभी कल 100 सेंचुरी मार के गया, मतलब दैट्स हाउ यू बिल्ड। एंड आई वुड से मैं पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट देखो मेन कोर टीम रही है सेम। अब व्हाट आई वुड लव कि थोड़ा सा उनको और स्टेबिलिटी दे दो कि अपने पीक तक जाएं। ऐसा लग रहा है कि जो पीक आई थी और अब नीचे जा रहे हैं, एंड आई डोंट लाइक दैट। एज लॉन्ग एज ऊपर जा रहे हो यार, डू व्हाटएवर, दैट्स काइंड ऑफ माय टेक ऑन दैट। I guess security is important thing. जैसे मैं देखता हूँ कि शान मसूद like whenever he comes to the press conference लोग पूछते हैं कब resign कर रहे हो like, I mean he's trying his hard to kind of make the test team better, right? यार अब यही तो मसला है ना कि जब तक क्लैरिटी ना हो, मतलब खुद वही वाली बात है ना। जैसे फॉर एग्जांपल राइट, इफ लेट्स से यू डोंट नो कि अगर आज हारे तो कल मैं कैप्टन हूंगा, तो यू गोना गो विद द मोस्ट डिफेंसिव एटीट्यूड इनटू दैट गेम। तो सम सॉर्ट ऑफ यही तो मसला है ना कि अरे यार वही वाली बता रहा हूँ ना, जब पीसीबी नहीं पता कि रहेगा नहीं रहेगा तो कैप्टन को क्या पता होगा, Okay. राइट? तो बात ये है कि यू नीड टू गिव अ कैप्टन कि भाई ठीक है तुम्हारे पास है 2 साल, लेट्स सी कहाँ जाता है, एंड हैव फेथ इन हिम, और हैव अ पाइपलाइन। एक चीज हाँ मैं भी भूल के बीच में बोलना था यार, एक दिन जो पाकिस्तान ने जो आई थिंक इतनी अच्छी नहीं की ना, कि जब ये 2021 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, ये शोएब मलिक, क्या नाम था, हफीज, all of the experienced players were kind of phased out together at the same time. यंग टीम थी, वेरी जबरदस्त टीम थी। मतलब आई वुड से कि वो T20 वर्ल्ड कप Really. जीता जा सकता था, एशिया कप जीता जा सकता था उस साल। बट व्हेन यू, जब आपकी एक्सपीरियंस बंदे नहीं होते ना टीम में, तो जो हाई प्रेशर सिचुएशंस है ना, उसमें उनकी जरूरत होती है। एंड आई थिंक पाकिस्तान लैक दैट। तो आई वुड से कि अब वो किसकी गलती थी, आई डोंट नो। सम पीपल से कि बाबर आजम वांटेड टू गेट देम आउट एंड ऑल दैट, आई जस्ट डोंट नो, दैट्स ऑल स्पेकुलेशन। इट माइट हैव बीन द बोर्ड, बट आई डू थिंक पाकिस्तान हैज नॉट डन अ गुड जॉब इन काइंड ऑफ रिटेनिंग experienced people in the team. I think last table captain I remember was Inzamam Ulhaq, I guess, or Mishma in test matches, but like overall, like Inzamam was the last sort of the powerful captain that I remember. बिल्कुल बिल्कुल के बाद 100%। like it's being a rotating chair. ऐसे ही है मतलब इंजमाम जो है ना, मतलब एवरीवन चेरिशेस हिम एंड ऑल दैट। मिसबा को बहुत सुनने को मिलती है, बट आई स्टिल थिंक यार रिस्पॉन्सिबल बंदा था यार, सुनने रिस्पेक्टेबल को ऐसा तो था धोनी ना। को भी मिली थी, सोचो। तो मिस्टर एंड हाँ धोनी कितना क्रिटिसाइज करते थे जब धोनी खेलता था, स्पेशली Hey, आखिरी one time Misbah was like he was the chairman selector, he was the coach, and he was also the captain of the team. Like he was हाँ everything for a while. नहीं मिसबा, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी मैन, लाइक आई हैव नेवर रियली सेड बैड थिंग्स अबाउट हिम। हम लोग तो भाई पाकिस्तान तो उसको इतना टुक टुक याद है अगर आपको। तो वो था, लेकिन जो भी है, आई वुड से कि एटलीस्ट ही वाज अ रिस्पेक्टेबल प्लेयर एंड डिड व्हाट ही कुड फॉर द टीम, सो आई रिस्पेक्ट हिम। बट सिंस देन यू राइट, एब्सोल्युटली कोई स्टेबल अभी तक मतलब उस तरह का कैप्टन नहीं आया कि जिसको देख के आप कहेंगे यार ये संभाल लेगा, राइट? लाइक आई थिंक इट हैजंट बीन लाइक दैट, या। But yeah, I mean, this was really great to know about Pakistan cricket, right? From a Pakistan fan insights, right? Shifting gears, एक क्वेश्चन था before we move to Champions Trophy. विराट कोहली, वो उस स्टेज के है, उसमें है जिसमें कुछ इंडियन फैंस आर क्रिटिसाइजिंग हिम कि they're doubting his form and his career, his future, near future, right? एज अ पाकिस्तानी फैन आपको क्या लगता है कि वो जो डाउट्स है, is it just lack of runs, or what are your thoughts on his और क्या वो संडे को क्लियर होंगे? तुमने कुछ बोलना है इस टॉपिक पे पहले? नहीं गो अहेड, मैं फिर बाद में ऐड करता भाई देखो, विराट कोहली ना, जितना उनकी तारीफ की जाए कम है, सीधी बात ये। लाइक मेरी नजर में ना, आई डोंट केयर हाउ मेनी सेंचुरीज यू मेक, आई डोंट केयर इफ यू हैव ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स, इफ ऑन द डे ऑफ द गेम इन फ्रिकिंग मेलबर्न या इन मतलब कहीं आप लॉर्ड्स में खड़े हुए थे, प्रेशर आप पे था और आपने उस प्रेशर में दिखा दिया ना, आई थिंक दैट्स व्हाट अ प्लेयर इज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट विराट कोहली इज, एंड दैट्स व्हाट धोनी वाज, एंड दैट्स व्हाट सम गुड प्लेयर्स इन पाकिस्तान वर।
वो होता है प्लेयर इन माय ओपिनियन, एंड विराट कोहली इज क्लियरली दैट। अब यार विराट कोहली की फॉर्म अब ऑब्वियसली कितना एक्सपेक्ट करोगे, कब तक होगी? आई जस्ट थिंक है कि अगर एक एक्सपीरियंस बंदे को रखने से तुम लोगों की टीम फिर भी स्टेबल रहती है, तो आई वुड से कीप हिम मैन। लाइक ही इज लाइक और फॉर सम रीजन पाकिस्तान के अगेंस्ट तो लाइक ही इज ऑलवेज कम आउट एंड लाइक डन समथिंग अमेजिंग। तो लाइक आई Yeah. इफ आई वाज मी, मतलब आई वुड जब तक चला सकता हूँ चलाऊंगा विराट कोहली। हमारी लास्ट अभी होप यही है कि संडे विल सी एंड देन विल डिसाइड कि आगे क्या होना है। यार इसीलिए तो मेरा लास्ट वाला जो गेम हुआ था हमारा, जिसमें पाकिस्तान ने ऑल आउट किया था कोई 120 पे, लेकिन फिर हार गए थे बुमराह की वजह से, हाँ, याद है? ऑलमोस्ट लाइक दे वर मुझे इतनी विनिंग लाइक खुशी हुई थी 55। क्योंकि बहुत आफ्टर सो लॉन्ग वी वर एबल टू गेट विराट कोहली आउट एंड ही डिडंट डू ही। और उसमें बुमराह, यार उस दिन मैं बुमराह, उससे पहले ना आई वाज नॉट अ बिग बुमराह फैन, आई वाज लाइक यार मतलब बस ठीक है। बट दैट डे आई रियलाइज कि यार दैट्स व्हाट अ प्लेयर इज, कि मतलब इन प्रेशर में खाता, आई डोंट नो कितने रन चाहिए थे, उसने उसने जिताया था। तो आई क्लच, वुड ही इज अ से क्लच कि प्लेयर, है। ही इज अ क्लच प्लेयर। हाँ जैसे यार फुटबॉल एग्जैक्टली के ये। उसमें बोलते हैं ना कि ही इज प्रीटी मच क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ सॉकर। जब टीम को जरूरत है एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ही इज गोना डिलीवर। वर्ल्ड टी20 फाइनल देख लो लास्ट ईयर, तो लाइक यू सेड, लाइक ही डिलीवर्स ऑल द टाइम। एग्जैक्टली यार, नहीं नहीं, आई वुड से ही इज अ ग्रेट एसेट। अब वो आई थिंक इंजर हुआ है तुम लोगों का भी, राइट? लाइक इज ही आउट फॉर द होल टूर्नामेंट, डू यू नो? नो नो, या आई होप नॉट। बुमराह इंजर्ड हुआ है, विराट कोहली नहीं हुआ नहीं नहीं, है। बुमराह की बात कर रहा हूँ, बुमराह की बात कर अच्छा रहा हूँ, अच्छा, हाँ ही बुमराह इज इज आउट, इंजर्ड, लाइक राइट? आई थिंक हमने यस। बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया उनकी पीठ पे। ये बट दैट्स गुड अंकित, मैं एक बात बताऊं, दैट्स गुड राइट? तुम्हें याद है वो शाहीन अफरीदी की इंजरी जो हुई थी वो फाइनल में? व्हाई वाज हाँ, दैट? बिकॉज उसको पुश कर दिया था लिमिट पे, जो है ना, हम लोगों के एक ही तीन तो बॉलर्स हैं वही खिला खिला के। बुमराह का समथिंग आई लाइक्ड इज इन द पास्ट, वो काफी टाइम बीच बीच में बाहर रहा है, लाइक मेजर मेजर टूर्नामेंट उसने मिस किए, बट व्हाट या हैपेंस इज बिकॉज ही मिसेस दैट टूर्नामेंट, ही इज एबल टू कम बैक इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट एंड एक्चुअली हैव एन इम्पैक्ट। दैट्स समथिंग लाइक फॉर सम रीजन पीसीबी हैज नॉट फिगर्ड आउट कि भाई ख्याल भी रखना होता है प्लेयर्स का। तो या ऑल द रिस्पेक्ट टू दैम। समटाइम डिपेंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, अगर हमारे पास शमी भी होता साथ में तो वी वुड हैव वन दैट सीरीज। मतलब कितनी बार ऐसे मौके आए वेयर वी वर वेरी क्लोज टू काइंड ऑफ गेटिंग देम आउट, बट हम कर नहीं पाए क्योंकि बुमराह वाज द ओनली बॉलर फॉर अ व्हाइल। तो मतलब हाँ यार, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दैट अपना, मतलब ये वाला जो टेस्ट सीरीज थी, मतलब आई डोंट नो, yes. एंड में 3-1 मजा नहीं आया, लेकिन आई वुड थोड़ा 2-2 होता, थोड़ा एंड में होता, लेकिन पहला मैच अच्छा था, पहला मैच में तो हालत टाइट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया तो की। फ्रेश थे ना। उसके बाद बुमराह was fresh, के बाद वो थक गया और उसके बाद फिर इट्स ऑल हाँ डाउनहिल अच्छा, फ्रॉम देयर। विराट कोहली की बात होती है अगेन, भाई विराट कोहली यार मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। पता है एक चीज मैं तुम्हें कहता हूँ, आई होप कि उनके रिटायर होने से पहले एक दफा पाकिस्तान आके खेले, उनको आइडिया होगा कि कितने लोग यहाँ पे प्यार करते हैं उनसे, और जो है ना कितने रिस्पेक्ट मिलेगी, कितनी लोग विराट कोहली की शर्ट पहन के बैठे होंगे कराची में या लाहौर में। सीरियस बता रहा हूँ यार, देखो वी आर द सेम पीपल मैन। इफ somebody from our who shares our DNA has been able to freaking मतलब become such a huge batsman, we should respect him unanimously, and I think everyone does it। मतलब अब Yeah. वो टाइम नहीं है कि वो एक शुरू में होता था, वो याद है जब he was more aggressive and wasn't as groomed, तो हम लोग गालियां देते थे, लेकिन यार आई थिंक फॉर द लास्ट 5 years आई थिंक देयर इज नो सिंगल पाकिस्तानी हु डजंट रिस्पेक्ट हिम। सलमान क्या Yeah, कहोगे इस पे? yeah, I would add that he's also a very good human being. या We also respect not only a cricketer, हम उसको इस तरह भी respect. I follow his workouts. मैं कहता हूँ यार ठीक है, I kind of have the same genetics. तो अगर I can probably maybe one day look like him. He's also a very great human being. और हमारे पास as Pakistanis we don't have the burden कि हम उसको क्रिटिक करें कि यार ये इंडिया को जिताए, ठीक है, हम उसको we can just like admire him for the player he is. वो आप लोगों का बर्डन है, like we don't care if एब्सोल्युटली। India, we can admire him for the batsman he is. So that is why I think हमारी जो क्या कहते हैं critique होती है वो सिर्फ purely on him as a person, not his contribution to the team per se, which is like obviously self-serving for us. But yeah, I एंड think हिस्टोरिकली जब जब जिस मैच में हमने मतलब आउट किया है विराट कोहली को, लाइक उससे वो जो एक यूफोरिया मिलता है, चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट में याद है वो जो हाँ। पहला पहला कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद मोहम्मद आमिर की, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे क्या हालत हो गई थी हम लोगों की, लाइक उस वक्त, लाइक मतलब तो ये बताना चाह रहा हूँ कि यार व्हेन यू हैव सच अ बिग प्लेयर, तो ही इज अ ड्रैगन टू स्ले। तो इट्स गुड फॉर ऑल द टीम्स टू बी के यार विराट कोहली का आउट किया है, और मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम यार, मतलब जितना तारीफ की जाए कम है। दैट्स काइंड जब वो ऑफ जब हमारे अगेंस्ट को बहुत बड़ा जिस तरह हारिस रऊफ के साथ किया था उसने, तो it doesn't feel too bad, at least for me, like it doesn't feel because it's like ठीक है अपना बॉय, मतलब I don't know how to explain it, but you don't hate him even if he's like
he comes out and wins it for India for against That Pakistan. was a quality inning यार, वो 2 6s मारना, हैरिस रॉफ इनक्रेडिबल फॉर्म, इनक्रेडिबल बॉलर, वो भी सामने मारना। एक से फेंक रहा था उसका वो पूरा, आई थिंक उसके बाद से उसका कॉन्फिडेंस ही क्रैश हो गया उस इनिंग के बाद। यार अपना क्या कहते हैं, नहीं यार उसमें मतलब इट दैट इनिंग सॉलिडिफाइड हिज लेगेसी। पहली बात, वो अलग बात है कि वो नो बॉल थी, नो बॉल नहीं थी, वी ऑल रिमेंबर, वी ऑल नो दैट, बट नथिंग कैन बी टेकन अवे फ्रॉम विराट कोहलीज इनिंग एंड हिज ability to freaking take the team from where he was left with massive respect। मुझे अभी भी याद है कि पूरी रात में खासे जाग के यहाँ पे मैच देख रहे थे हम लोग, और एंड में मैंने कहा यार इसके लिए मैं पूरी रात जागा हूँ। एनीवे, व्हाट एन इनिंग दैट वाज मैन। आई थिंक Yeah. इंडिया में विराट कोहली को लोग क्रिटिक भी करते हैं, बट द थिंग इज दैट कि दे आर रिलेटिव फैंस, राइट? लाइक कोई रोहित के फैन है, दे आर काइंड ऑफ, अगर इफ यू लुक विराट इन आइसोलेशन, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड हिज कंट्रीब्यूशन वुड बी सब्जेक्टिव, क्योंकि कोई वर्ल्ड कप नहीं है, कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं है, but the kind of impact he had on the fitness, the test team, like the fast bowling, like before him, like India was a spinners team, right? Dhoni was always like playing 6 spinners और खिला लो, like he was the one who kind of generated that fast bowling culture, मतलब। बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा मेरा, इफ यू डोंट माइंड, एक चीज तो मैं डिस्कस करना है। तुम लोग एक ना एक डिलेमा में हो आई थिंक कि रोहित शर्मा भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब अगेन ही इज अमेजिंग कैप्टन, लेकिन अगर आप बैट्समैन के तौर पे देखो, आई हैव मतलब मुझे याद नहीं है कब उन्होंने बहुत परफॉर्म किया है। तो मसला ये हो रहा है कि दो बैट्समैन आपके, कभी विराट कोहली थोड़े से डाउन हो जाते हैं, तो वो आपकी बड़े एक मुश्किल सिचुएशन बन गई है कि एक विराट कोहली है जिनको कभी बिठा नहीं सकते आप, एक रोहित शर्मा है जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताया है। तो दो स्लॉट्स आपके ऐसे हैं जिसपे आप लोग से दुआओं पे चल रहे होते हो कि भाई चल जाओ, राइट। आपने ये जो बोला है ना, ये बस बेस्ट शब्दों में आपने पोर्ट्रे किया है। बहुत लोग ऐसे मानते हैं हम बस बोल नहीं पाते एज एन फैन, राइट? गलत फील होता है, बट यस, एग्जैक्ट। अभी फॉर्म ऐसा है। विराट तो ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट, राइट? बोथ आर ग्रेट प्लेयर्स, बट विराट इज डिफरेंट, डिफरेंट लेवल। ऐसे कुछ दिनों के लिए हम पीसीबी का थोड़ा सा कल्चर ले आए तो हम निकाल देंगे उनको। यार हाँ यही तो है कि हाउ डू यू डू इट टैक्टफुली, राइट, हाउ डू यू डू स्ट्रेटेजिकली। तो अब यही है कि बस रोहित इज कैप्टन, तो आप उसको कैसे, मतलब किस बेसिस पे आप, वो तो और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई, राइट? सर न्यूजीलैंड वाला जो टेस्ट आप हारे हैं ना, दैट उस पे क्वेश्चन उठना चाहिए था। होम उस सीरीज। पे लाइक आपका, मैं देख रहा था कोई नहीं जीता पिछले 40 सालों में इंडिया में यार, बेरली कोई ये मैच जीते हैं, एक दो जीते हैं यार। लाइक हाउ कैन यू फ्रिकिंग लूज 3-0, 3-0। थ्री बट जीरो उसका एक रीजन है जो मुझे लगता है, जो काफी टाइम से मैं और यशी बात करते हैं, कि इंडियन प्लेयर्स हैव दिस, दे आर नॉट प्लेइंग स्पिन वेल नाउ। लाइक उनको लगता है मन में वो है कि हम खेल सकते हैं, देन दे मेक दोस काइंड ऑफ पिचेस, और उसके बाद कोई फॉरेन से बॉलर आता है और 6 विकेट ले जाता है 8 ओवर में। तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक काइंड ऑफ गलत फहमी है कि हम स्पिन अच्छा खेलते हैं, बट हमने स्पिन अच्छा खेलना 10 साल पहले बंद कर दिया है। सही। तो वही मैं एक कह बट रहा ये हूँ या कि बड़ा रीजन आई है। थिंक न्यूजीलैंड वाली चीज पे जरा और आवाज उठनी चाहिए थी, क्योंकि दैट वाज अ टफ लॉस मैन, मतलब दैट इज, बट यू बाउंस बैक मैन, इट्स इंडिया, इट्स फाइन। जो एक प्लेयर ने जो वोकली बोला था वो था रविचंद्रन अश्विन। उसने बोला था कि जिस दिन इंडियन सीरीज इंडिया में हार गई, मतलब मिड सीरीज में बीजीटी बॉर्डर गवास्कर में वो रिटायर हो गए, तो जडेजा ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि उन लोग के लिए ज्यादा हुआ, राइट? कि यार ये क्या हो गया है कि इंडिया में आप सीरीज हार गए हो, टेस्ट सीरीज क्लीन वाइट वॉश्ड। सो इट वाज अ वेरी बिग आई ओपनर, एंड with that, I'll be very surprised अगर रोहित शर्मा is still the captain for the England series. कुछ तो impact होगा। रोहित might lead in the white ball format, but red ball format, there needs to be a lot of introspection. बिल्कुल बिल्कुल Yeah. बिल्कुल, देखते हैं अभी क्या होता है इस टूर्नामेंट में। आई थिंक इसके बाद अगर ये जीत गए तो फिर कहानी खत्म, फिर चलता Yeah. रहेगा। हाँ, यही होता है। Yeah, let's move to the last piece of our segment, which is Champions Trophy. So let's talk about that. Up start with Pakistan. Pakistan का important player just got injured, फकार जमान। तो उसके आपको क्या, who do you think will fill his shoes, and who do you think will perform in India Pakistan game? Let's talk about that game कि आप, हम चारों में से हमें क्या लग रहा है कि who will win obviously, and then who will be the top performer batsman and bowler? यार पहले तो मैं जरा ये वाली टोपी पहनूं ना अपनी पाकिस्तान टीम की। देखो यार ऑब्वियसली एज अ परफेक्ट। पाकिस्तानी फैन आई कांट से कि इंडिया जीतेगा। आई Of रियली course. थिंक ऑन द डे पाकिस्तान हैज ऑलवेज हैड इट व्हाट इट टेक्स टू बीट एनी टीम। आई थिंक वी ऑल एग्री कि कुछ भी कर सकती है पाकिस्तान टीम ऑन द डे। अच्छा फखर जमान जो है ना हमारे, वो आपको पता है कि वो वो याद है उन्होंने वो 400 वाला मैच जिता दिया था उसके अगेंस्ट हाँ, न्यूजीलैंड के। तो उनका कुछ पता नहीं है, तो लाइक
भाई कभी कभी वो उनके ना होने से फायदा हो जाता है, कभी कभी होने से फायदा हो जाता है, तो आई डोंट नो कि मतलब उनके होने से क्या फर्क पड़ेगा। अब हु विल परफॉर्म, यार अब ये देखना पड़े, सोचना पड़ेगा। आई मुझे फॉर नाउ आई रियली थिंक रिजवान हैज बीन ओके। आई डोंट नो यार, वो जब भी अभी आउट हुआ था पिछले में, वो थोड़ा सा जरा बहुत अच्छा कैच हम्म। पकड़ लिया था। आई थिंक रिजवान माइट बी एबल टू लाइक टेक ऑन द प्रेशर एंड डू समथिंग ओवर देयर, बट आई थिंक इट विल कम डाउन टू द बैटिंग। कि भाई अगर इन लोगों ने अनलेस नहीं डाले ना रन्स, तो फिर तो भूल जाओ। तो I think Pakistan can do it, but obviously, अगर आप statistically, if I was a gambling man, then obviously money would be on India, obviously, but really kind of hoping कि पाकिस्तान हो जाए। समान बोलो। बट किस प्लेयर बैट्समैन और बॉलर पे आप पाकिस्तान की साइड और इंडियन की साइड में आपको लग रहा है कौन परफॉर्म करेगा? समान बोलो, तुम कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, आई वाज जस्ट करा, मैं फॉलो अप करना चाह रहा था। तूने जो बोला है ना आपने कि इफ आई वाज अ बैटिंग मैन, तो आई वाज लुकिंग एट ऑड्स। मैंने कहा अभी मार्केट इज द बेस्ट वे या टू सी दुनिया का प्रिडिक्ट करिए। तो इंडिया हैज द बेस्ट ऑड्स राइट नाउ। इट हैज 13 to 8 odds, lowest betting odds. Next is Australia. I thought it would be like New Zealand, but next is Australia with 5 to 1 odds. And third is England with 7 to 1 odds. So this is the like sports betting market में ये odds चल रहे हैं, just like adding to the betting. So you're यार बैटिंग में लाइक एक और saying है कि the fortunes are made in contrarian bets. तो अगर आपको बनाना है तो put it on Pakistan. ये तो है। यार भाई सही बताऊं, पाकिस्तान इंडिया के मैच में ना, इट कम्स डाउन टू द प्लेयर हु कैन टेक ऑन द प्रेशर। अब मैं सही बताऊं, आई डोंट हैव अ नेम इन माय माइंड हु विल परफॉर्म। अगर गिरना शुरू हुए ना ऊपर से, तो फिर वही होगा जो हमेशा हुआ है कि हम्म। पूरी बैटिंग लाइनअप गिरेगी। इंडिया की आ, पाकिस्तान की? पाकिस्तान यार, इंडिया इंडिया की तुम लोग के, आई थिंक गिल। वैसे गिल ने कोई अच्छा मैच खेला है पाकिस्तान के? आई डोंट रिमेम्बर। गिल गिल हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। 2020 हाँ आई थिंक 3 में मैसिव ईयर था उसके बिल्कुल। लिए। बट आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग अंकित, आई डोंट नो इफ ही हैज परफॉर्म्ड इन अ बिग टूर्नामेंट एट द बिग स्टेज अभी तक येट नहीं हुआ है। हाँ, येट बट देन विराट कोहली तो हैं आपके, वो मार देंगे। तो वो आई यार पता है, इंडिया पाकिस्तान इज एन मैच ऑफ इमोशंस एंड प्रेशर। तो देखते हैं क्या होता है। ऑनेस्टली आई डोंट नो, आई विश आई हैड मोर स्टैट्स एंड एनालिटिक्स टू गिव यू, बट आई जस्ट डोंट थिंक आई वुडंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट। सीधी ओके, बात ये है। फेयर इनफ। व्हाट yeah, अबाउट यू सलमान? yeah. I फखर जमान वाली बात पे I was thinking about this. But I think हमारे अंदर tendency है to create players, not rely on past players. And I think a new star might be created. अगर तो I'm very optimistic. This like as a Pakistani fan, I would love to see Pakistan win. मुझे लग रहा है कि and we bring talent, और उस talent को लाके हम फिर बड़े टूर्नामेंट में ही निकलते हैं। फखर जमान भी ऐसे ही निकला था। I honestly personally think Saman Agha is going to do great for us in this. बॉलिंग में देखते हैं, हो सकता है इब्रार जो है हमारा स्पिनर, वो हो सकता है कुछ करे। लाइक अगेन, जैसा सलमान ने बोला, दिस इज द टाइम फॉर एनीबॉडी टू प्रूव देमसेल्व्स। तो देखते हैं अगर प्रेशर में। और वैसे मैं देखो, पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज, राइट? मतलब पहले पीपल हैव काइंड ऑफ लाइक सेड कि वैसी रैंकिंग भी लो है, तो हु नोज, कुछ भी हो सकता है ऑन संडे। बट विल सी। ऐसे वक्त पे ही बहुत बड़े अपसेट्स होते हैं। नॉट अपसेट, बिल्कुल। पाकिस्तान इज अ वेरी सारी हाँ टीम मतलब आई सीरीज गेट इट। जीती है, बट कुछ भी हो सकता है, राइट? कोई फेवरेट, क्लियर फेवरेट इंडिया पाकिस्तान के गेम में आई डोंट नो, आप बोल सकते हो कि नहीं? मजा तो आता अगर इंडिया होती, गद्दाफी में आके खेलती, गद्दाफी में हराती। मसला ये है कि वो है दुबई में। अब वो ठीक है ना? पॉलिटिक्स हम बट हम देखिए दुबई में एक ये भी फायदा है ना कि एटलीस्ट फैंस आर अनबर्डनड बाय द लोकल इमोशंस और वो एंजॉय कर पाते हैं। मतलब हाँ ये ऐसा तो नहीं है। लगता कि कुछ इंटेंस हो रहा है ज्यादा। मतलब मैं देखा कि लोग मैच के बाद निकलते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं, साथ में बिरयानी खाते हाँ ये तो है। हैं। आधे लोग रूममेट होते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये वुड हैव बीन अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू कम एंड बीट पाकिस्तान गद्दाफी। यार बीट अस इन इंशाल्लाह। कराची। वही मैं कह रहा हूँ यार, कर लाइक दैट्स व्हाट आई बीन लाइक टेलिंग एवरीवन कि यार दिस इज द टाइम फॉर। देखो, जब व्हेन यू हैव द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, राइट? आओ आके हराओ, आके आके अपना झंडा लगा के जाओ भाई स्टेडियम में। तो लेकिन दिस वहां इज। हम हार गए, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम इट फॉर एनी कैप्टन। यार ये माइंडसेट गलत है ना यार, अंकित। नहीं देखो, एक बात बताओ, मतलब इफ यू लुक एट द हेड टू हेड स्टैट्स इंडिया पाकिस्तान के, लगता है कि पाकिस्तान जीत रहा है, जबकि पिछले 20 साल से तो मैंने पाकिस्तान को जीतते हुए नहीं देखा। तो ये ऐसे ही चेंज होगा जब हमारी बायलैटरल शुरू होंगी, व्हेन वील प्ले मोर। यार एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान इंडिया की एशेज से बड़ी टूर्नामेंट नहीं होगा अगर हम करा दें हर साल या हाँ हर 2 साल बिल्कुल। बाद? It's also, तो I really think कि भाई there is so much potential there to make money off of this Pakistan India rivalry, और वो we are not doing it because of politics and all that, and वो आप उसके पीछे आपको पता है या क्या चल रहा है, but I think there's a huge
opportunity there. एक इंटरेस्टिंग बात, लाइक वी टॉक्ड अबाउट कि कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेंगे, लाइक बोथ ऑफ यू डिड नॉट से like Naseem or Shaheen or Harris, like Babar. does that kind of give you the state of Pakistan cricket that your main players are not being sort of touted, they can win the match? यार इसलिए भी कहा है क्योंकि अभी जब हाँ तुम सही कह रहे हो, लाइक बट उसका रीजन ये भी तो है ना कि अभी जो सारे लास्ट मैचेस हुए हैं वो हुए भी इधर ही हमारी फ्लैट पिचेस पे, तो मे बी इसलिए भी थोड़ा सा वो बायस है, बट हु नोज यार, विल सी। दुबई में मतलब अगर पाकिस्तान इज बॉलिंग लास्ट लाइट्स के अंदर, नसीम लाइक हारिस, दे आर गोइंग टू बी लीथल ब्रो। इट्स उस उन कंडीशंस में अगर उनको बॉलिंग मिल गई और अगर इतना टोटल हुआ कि वो फंस रहा है, तो इंडिया विल बी दैट इज माय प्रेडिक्शन। लेकिन हम लोग बॉलिंग पे इतना ज्यादा काउंट कर रहे हैं पहले से, व्हिच इज व्हाई आई डिडंट एक्सप्लिसिटली कॉल देम आउट, बट तीनों कैन बी प्रीटी dangerous. So Shaheen, Haris and Naseem under the right. I'm gonna bet on Babar Azam. I know I'm obviously India's winning, as per me, but Babar Azam is gonna give us a big trouble. What do you think, Ankit? I think Rizwan. I think Captaincy. Rizwan will score enough that he will take it somewhere and then will be criticized for giving it away. That's my prediction. I mean, but I think he is the main player for me. बाबर के लिए ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर एक कमबैक स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ पे जो उसको एक वो मिलेगा ना, उसको बूस्ट मिलेगा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा जो विराट कोहली ने किया, राइट? बिग स्टेज। I mean, I really want him to perform. Obviously, I'm an Indian fan, want India to win, but yeah, he should perform. He's a very capable player यार, इतना talented player है, क्या cover drive मारता है, but we'll see. मजा आएगा। अच्छा, एक और question. Let's all give our semi-finalist. So just take a moment. Let's see आपके क्या 4 teams आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी। मैं जरा स्टैंडिंग्स तो देखूं अभी क्या चल रहा है। अच्छा, सब अच्छा सोचें पहले। I'm gonna go with India. उनका नंबर 1 हैज टू प्ले विद आवर नंबर 2, राइट? जो ग्रुप में जो होता है। Yes, correct. डिपेंड करेगा लोकेशन पे, लाइक दैट्स अनदर फैक्टर कि अगर इंडिया गए तो लाइक इट्स नॉट क्लियर। ओह आई सी। अच्छा, ये भी चीज है बीच में, बिकॉज़ अगर इंडिया गया तो सेमीफाइनल दुबई में होगा, नहीं तो इट कुड बी लाइक नहीं, बट इट वुडंट चेंज लाइक हु इज प्लेइंग हु, राइट? Yeah, it won't change that. India, it's just that wherever अगर इंडिया टॉप करती है ग्रुप ए में A1, तो B2 वाली को दुबई जाना पड़ेगा। हाँ वो तो पता है, वो तो अगर पता है। A2 वाले में B1 वाले को दुबई जाना पड़ेगा। दैट्स फाइन। अच्छा यार, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड दिस इज, मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड आएगा इधर से नंबर 1, ठीक है? और आई होप पाकिस्तान, लेकिन रियलिस्टिकली लेट्स से अगर इंडिया आती है नंबर 2 पे, ठीक है, उधर से कौन है यार? उधर से ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 और साउथ अफ्रीका नंबर 2। दैट्स माई, तो आपका हो गया सेमीफाइनल न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका एंड देन ऑस्ट्रेलिया इंडिया। दैट्स माई टेक ऑन द। तुम लोग बताओ अपना। Go for it, Yash. Come on, go for it. न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एक सेमीफाइनल है और पाकिस्तान इंग्लैंड दूसरा सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड इंग्लैंड अभी इंग्लैंड मैंने इसलिए नहीं बोला यार, अभी वो हारे नहीं है, किस से हारे हैं यार? अभी तक मैं तो यही देख रहा था, हारे जा रहे थे। इंडिया से हारे 3-0 हम, है ना? लाइक दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मे बी वो इतने वो नहीं होंगे, लेकिन मे बी दैट्स ओके। देखते हैं। और तुम लोगों का क्या कहना है याश और अंकित? I think New Zealand, India from this group, and South Africa and England from that group. अच्छा, ओके गुड। ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया। पैट कमिंस को तुम जो है ना वो कर रहे हो। Pat Cummins is not playing. He's the reason I'll tell you. ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मोमेंट पे उनका स्क्वाड चेंज किया है, 5 प्लेयर गए उनके, तीनों। क्या हुआ है मुझे तो सुना बताता हूँ। मिचेल स्टार्क गॉट ही पर्सनल रीजन से वो बाहर हुए हैं। जॉश हेजलवुड इंजर्ड, पैट्रिक कमिंस इंजर्ड, स्टॉइनिस आउट, और एक और कौन था अंकित? मिचेल मार्श। तो पूरा स्क्वाड नया है उनका। फिर तो मेरा मैं भी चेंज कर रहा हूं। पैट कमिंस अगर हमारा पॉडकास्ट देख के अफेक्ट हो गया तो हमारा पॉडकास्ट चल पड़ेगा। या पैट कमिंस अगर खेलता तो मेरे उसमें भी आता, बट फॉर मी इट विल बी इंडिया एंड न्यूजीलैंड फ्रॉम ग्रुप ए, एंड देन इंग्लैंड, even though they lost 3-0, they're gonna come big tournaments, they're gonna smash it. So, and even though Australia has big 5 players out, I'm still gonna count them in, because when it comes to white ball cricket, you cannot leave Australia out.
कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं वो लोग। शेन वॉटसन ने कहा था ना, नेवर काउंट ऑस्ट्रेलिया आउट। या तो फाइनल क्या है भाई तुम लोग के हिसाब से फिर, अकॉर्डिंग टू योर प्रिडिक्शंस? मेरा तो यही, आई थिंक अगर अगर वही हुआ जो मैं कह रहा हूँ, आई थिंक इट्स गोना बी न्यूजीलैंड इंडिया फाइनल, मेरी नजर में। दैट्स व्हाट आई थिंक। विल सी। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा और बहुत इंडियन फैंस को अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराती है। हाँ ये तो है, ये तो तो है भाई। आल वो जो घर पे हुआ था 2023 में, बिल्कुल। इट हर्ट्स। यार मुझे भी बहुत तो सुकून मिलेगा ऑनेस्टली। मुझे भी बहुत, ये ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आके, इज अ डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया। हाँ यार ये तो उन्होंने है। जो मर्जी किया हो टूर्नामेंट में, फाइनल में आके उनको कुछ हो जाता है। फिर आई ये भी वांट। लगता है कि उनके साथ फाइनल नहीं खेलना है। हाँ। आई गेस प्रेशर नहीं होता ना, लाइक मतलब दे आर नॉट काइंड ऑफ बर्डन बाय कि हमें हार गए तो क्या होगा। लाइक पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई लेने भी नहीं आता है। हाँ हम T20 वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, पूरा मुंबई बंद हो जाता है एक दिन के लिए। हाँ, तो मतलब बहुत फर्क है मतलब हमारे कल्चर्स में। that's true. That is true. I think, yeah, that is the biggest difference between like subcontinent and like the rest of the countries. ठीक है, उनके यहाँ तो इंग्लैंड में तो मतलब चलो क्रिकेट अच्छी है, उनकी अपनी रग्बी है, उनकी 10 चीजें और हैं, उधर भी रग्बी ज्यादा देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ये तो है, ये तो है अपना। अच्छा। गो अहेड। माय फाइनल इज इंडिया साउथ अफ्रीका, सो आई एम रूटिंग फॉर इंडिया दैट। साउथ, यार वैसे पता है, आई डू, अच्छा तो आई नो यू गाइस वांट टू लाइक, ऑब्वियसली इंडिया जीते, हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते, बट अगर न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में कोई जीते ना, दैट वुड बी गुड टू सी एज वेल यार। बेचारे हर दफा आते हैं, एंड तक जाते हैं और आई कुछ वुड। ना कुछ हो बट जाता है। न्यूजीलैंड को एक मिल गया है, न्यूजीलैंड को एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मिल गई है। साउथ हाँ अफ्रीका स्टिल आई फील उनके साथ भी गलत, लाइक गलत तो नहीं हुआ, हम जीते थे अच्छे से, बट दे आल्सो डिड वेरी वेल। सो यार, इंडिया को एक टेस्ट चैंपियनशिप अब मिल जानी चाहिए, जितने अच्छी परफॉर्मेंसेज रही है ना। अब आई नो दिस थ्री ने काइंड ऑफ मेस्ड ऑल ऑफ दैट अप, बट आई वुड से कि अभी तक, एक तो मुझे उसका फॉर्मेट भी ना, आप इतना खेल के आते हो इनमें एक मैच यार, लाइक दैट्स, आई तीन मीन होना ठीक चाहिए है, डेफिनेटली। बेस्ट ऑफ थ्री तो होना चाहिए, यस। वर्ल्ड बेस्ट टेस्ट ऑफ थ्री। चैंपियनशिप में आई बेस्ट ऑफ थिंक थ्री। जो टीम पहुंचे, एक होम ग्राउंड दोनों के लिए और एक न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए, सो दैट एवरी टीम हैज ओ द सेम चांस। दैट्स अभी क्या होता है वैसे, आई डोंट इवन रिमेंबर, लाइक इट्स बड़ी ऑलरेडी इंटरेस्टिंग। लाइक लॉट्स में होता है। दे आर ट्राइंग कि मतलब कहीं और हो, बट आई थिंक कंडीशंस आर डिफरेंट, राइट? इंडिया को वहां भेज दोगे, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, इट्स अ डिफरेंट कंडीशन। मुझे लगता है कि एक एक होना चाहिए होम ग्राउंड्स पे, एंड देन बिल्कुल। वन इन दुबई में भी, लाइक। हाँ, दुबई में कर लो, लॉर्ड्स में कर लो, जहाँ करना है कर लो। नहीं, आई गेट इट, आई गेट इट। हाँ यार, उसका उसका कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि लीड अप, अच्छा बात बताऊँ, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, आई लव द टेस्ट चैंपियनशिप। आई थिंक उसकी वजह से ना मजा आ गया, मतलब क्योंकि मुझे, आई रियली इंजॉय फॉलोइंग टेस्ट क्रिकेट ज्यादा। अच्छा, आईपीएल पीएसएल में बताऊँ, आई हैव नेवर बीन एबल टू फॉलो। एक तो इतने ज्यादा मैचेस हो रहे होते हैं, आई फील लाइक बस छक्के चौके मारने का गेम है। टेस्ट में ना, आई रियली इंजॉय, तो आई एम हैप्पी कि ये हो रहा है चैंपियनशिप, बट आई होप कि फाइनल का कुछ करें ये लोग। आई थिंक रिजल्ट्स भी आने लग गए ना, मैं देखता हूँ जैसे। आई लव द वे इंग्लैंड प्लेज टेस्ट क्रिकेट, राइट? हैरिस ब्रूक लाइक इज अमेजिंग प्लेयर, लाइक उसको देखो लगता है T20 देख रहे हैं, लाइक स्कोरिंग एट लाइक 120 स्ट्राइक रेट, लाइक चेंज द गेम ओवरऑल। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी तक देखो, अभी तक ना वो एशेज जीत पाए। वो जब से वो हुआ, ठीक है, एशेज वो कह सकते हो कि वो एक दिन बारिश हो गई थी तो ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन अभी तक कोई मेजर विन उन्होंने नहीं की मेरी नजर में। विद दैट एटीट्यूड, छोटे हमारे पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया आपने। दिल जीत रहे हैं। हाँ, दिल जीत रहे हैं और सब, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि, और आई फील लाइक नाउ इट्स डाइंग डाउन। आई थिंक वो जो उनका क्या कहते थे उसे, बेसबॉल। बेसबॉल, बासबॉल क्या कहते थे, बेसबॉल। बेसबॉल, हाँ, आई फील लाइक इट्स गोइंग अवे, लेट्स सी या क्या होता अरे वो है। कुछ कुछ चीजों में ही वर्क करता है, हर जगह नहीं चलेगा। या एक एक और क्वेश्चन इन दैट प्रिडिक्शन सेगमेंट। क्या आपके हु इज योर टॉप बैट्समैन, रन गेटर एंड लीडिंग विकेट टेकर फॉर दिस टूर्नामेंट, एनी टीम्स इट कैन बी। दैट इज। ओए यार, पता है मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रहा, अभी देख सोचना I'm पड़ेगा। I'll start. I'll हाँ go तुम स्टार्ट with करो। I'll go with Shubman Gill and Mohammad Shami as my top run getter, and Mohammad Shami as the leading wicket taker of the tournament. गिल तो मैं एग्री करूंगा। आई थिंक लीडिंग अप गिल हैज बीन वेरी स्ट्रांग। इफ ही कैन जस्ट टेक ऑन दैट प्रेशर, गिल कैन रियली बी लाइक ही कैन बी द, वो क्या कहते हैं, हाईएस्ट विकेट्स में। यार देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। शमी कैन बी, मतलब देयर इज नथिंग स्टॉपिंग हिम। 5 तो ले लिए उसने ऑलरेडी। अच्छा, मैंने तो देखा भी नहीं, ही टेकन 5 इन द लास्ट गेम। Yeah, and after coming back from an injury, एक साल इंजरी से बाहर था. Then he played the ODI series against England, but great comeback at his age. 5 विकेट लिए नहीं, आई डिडंट, सॉरी मैंने मैच ही नहीं देखा था, तो हाँ, आई वुड से दैट्स अ वेरी गुड प्रेडिक्शन। अगर तू पाकिस्तान जाता है ना ऑल द वे, शाहीन आई थिंक वुड बी, Shine. शाहीन इज अ टॉप कंटेंडर। What about batsmen?
यार With- रिजवान मुझे लग रहा है इस वक्त ना, अगर कोई थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहा है ना मारियां पिछले कोई साल में, तो रिजवान है। तो लेट्स सी, हमारी तरफ से रिजवान है। बाकी यार बाकी टीमों का मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा रिसेंटली, पिछले कोई 6-7 महीने में, तो आई कांट रियली से। तो गिल और ये शामी, अच्छी प्रेडिक्शन है तुम्हारी। What about you, Ankit? मुझे लगता है बैटिंग में शुभमन गिल और बॉलिंग में इंग्लैंड का स्पिनर राशिद। Oh, that's an interesting one. अरे हमने इस बात राशिद खान you said, right? हाँ, तो So, इंग्लैंड का oh, राशिद। Adil Rashid. Since I said Rashid Khan, what do we think about Afghanistan team? The बेटा, underdogs. उनको कभी भी, जब से उन्होंने इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया है ना उस वाले में, आई डोंट थिंक वी शुड रूल देम आउट। आई रियली Yeah. डोंट थिंक, मतलब अपना दे कुड डू एनीथिंग। विल दे डू इट इन दिस फॉर्मेट? तो इतनी इन 8 टीमों में, हु नोस। अगर उनको एक विन मिल जाए ना, आई थिंक एनीथिंग इज पॉसिबल। वो भी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल टीम है। वो लोग बात, उन्होंने हरा दिया पाकिस्तान को लास्ट टाइम। उससे पहले ये हो रहा था कि एंड तक जाता था मैच और फिर पाकिस्तान जीत जाता था। तो वो वाज फन, बट हु नोज अब क्या मुझे होगा। याद है एक मैच था इसमें इमाद वसीम वाज बैटिंग लास्ट ओवर और कुछ 10-12 रन चाहिए थे एंड लाइक काइंड ऑफ वो डिड इट। नसीम शाह वाज बैटिंग। नसीम शाह बैटिंग कर रहा था, मुझे 2 छक्के गलत। मारे थे। 24 रन चाहिए थे 6 बॉलों पे। नहीं, 12 रन चाहिए थे 6 बॉलों पे। तो उसमें 2 छक्के मारे थे। तो वो तो यार बहुत, वाज अ गुड मैच। लेकिन यार आई लव द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया हैज कम अप मैन। मतलब ऑस्ट्रेलिया हैज कम अप। तो देखते ऑस्ट्रेलिया हैं। बाकी ये श्रीलंका भी तो वाज ओके राइट, या नहीं? लाइक डिडंट दे जस्ट बीट समवन लाइक, या नहीं? I आई don't थॉट think दे they're बीट। qualified, are they? एक मिनट, Uh, सॉरी सॉरी, श्रीलंका कह रहा हूँ मैं। इसे सॉरी सॉरी, श्रीलंका तो क्वालिफाई नहीं किया। ओके, पर कहानी खत्म हो गई। but Afghanistan, like you said, कुछ भी कर सकते हैं। कोई उनको अंडर, मतलब अगर 8 टीमों में आप आए हो तो आप चैंपियंस आई ट्रॉफी थिंक वेस्ट इंडीज नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, अफगानिस्तान है, सेज अ लॉट की। ये तो है। या आई थिंक अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की थोड़ी सी देर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ काउंट रिप्लेसेबल है। आई थिंक दे हैव द सेम वाइब। खेलते भी साथ में ही है वहां पे, हाँ, कैरिबियन प्रीमियर लीग में सारे लोग वहीं रहते हैं ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दे हैव द सेम टेम्परामेंट, तो कुछ भी कर सकते हैं। राशिद खान अमेजिंग अमेजिंग प्लेयर। आई मीन मुझे लगता इंडिविजुअली। है दुबई में मैचेस होते हैं ना अफगानिस्तान के, तो आई वुड हैव बीन मोर काइंड ऑफ फेवरेबल टू अफगानिस्तान। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के फ्लैट विकेट्स में दे डोंट हैव दैट बैटिंग टू दैट्स कंसिस्टेंटली ट्रू, स्कोर मतलब 300। That is true. That is true. But दैट्स अ गुड पॉइंट। like, इस, they इससे do play a lot on Pakistani pitches, so this. इससे एक क्वेश्चन है मुझे। आई माइट गेट लॉट ऑफ स्लैक फ्रॉम a lot of people, but as a not an Indian fan, do you think India has an advantage of playing at the same venue? They know everything, how just one ground, all the matches. So do you think that's an unfair advantage India has? भाई मैं तो कहूँगा 100% भाई। जब आप एक होम टूर्नामेंट किसी के यहाँ जा रहे हो, तो लाइक, अब वो पॉलिटिक्स असाइड छोड़ो, लेट्स Mm-hmm. अस्यूम के हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, Yeah. 100% यार। मतलब आई वुड से कि आप एक ही ग्राउंड में खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, बाकी टीमें हैव टू काइंड ऑफ चेंज फ्रॉम द लाहौर कराची। तो ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक कोई, मतलब ये It's an unfair साइंटिफिकली प्रूव। advantage. हाँ, आई थिंक सो। Yeah. आई थिंक सो, बट गुड फॉर इंडिया मैन। लेट्स सी क्या होता है। मतलब इट कुड वर्क फॉर देम, What do क्योंकि you think, Salman? No, I जिस तरह अभी like New Zealand India like big shock. Why was it a big shock? क्योंकि वो उनके होम ग्राउंड पे हरा है। तो it's a big factor, right? Unfamiliarity है, pressure है, travel है. You take all of these factors out of the equation. You're just sitting in one city. जिसको आप जो आपको like Dubai is like more familiar to these teams than any of their own grounds. So it's even more of a home country than their home country. So it's like Yeah, massive. I mean, as an Indian fan, मैं भी kinda on some grounds I agree कि it is an unfair advantage. But again, Indian government, Indian politics, I respect that. So whatever decision, same both boards, right? There is a reason for that. But yeah, as far as we are talking about cricket, it's an unfair advantage for sure. किसी भी स्पोर्ट में आप ले लो, आपको पता है बाकी टीम्स ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल में भी जैसे एक बार सचिन या धोनी ने बताया था कि एक सिटी से दूसरी सिटी आप वर्ल्ड टूर्नामेंट में ट्रैवल करते हो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ ऑन योर बॉडी, राइट? नॉट दैट आई एम सेइंग कि एक शहर में रहोगे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, बट आई थिंक कुछ ना कुछ तो एडवांटेज है। आई बिल्कुल। डिपेंड्स, इट कुड बी डिसएडवांटेज। मतलब मुझे लगता है कि सेम विकेट्स पे खेलेंगे, किसी दिन स्पिन हो गई तो बोलेंगे हम वहीं खेल रहे थे, तो विकेट स्लो हो गई थी और इस वजह से हमारी सेकंड बैटिंग आई, हम चेज नहीं कर पाए। इट कुड बी एनीथिंग लाइक। हाँ, Yeah, but good. We'll see.
एक और टॉपिक मैंने बात करनी है, ये जो क्या आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेलते और पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स नहीं खेलते, इन पे आप लोगों का क्या राय है? मैं तो आई वो अगेन पॉलिटिक्स असाइड मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हाँ कि भाई ना खेलने से क्रिकेट पे ओवरऑल क्या इफेक्ट आ रहा है? पॉलिटिक्स असाइड यार बहुत मजा आता है यार। फर्स्ट सीजन आप देखो क्या 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 था, मतलब मोहम्मद आस सो मेनी पीपल राइट, तनवीर सोहेल तनवीर राजस्थान रॉयल्स से खेलता था राइट। शोएब अख्तर तो प्लेड हाँ शोएब अख्तर प्लेड इन आईपीएल शोएब रिसेंटली। अख्तर केकेआर राइट। तो आई फील दोनों कंट्रीज को वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत एडवांटेज होता। बिल्कुल। पॉलिटिक्स असाइड आई फील या वर्ल्ड क्रिकेट के लिए तो लॉस है जो भी चल रहा है। एंड a lot of I was talking to a neutral fan. They say what if other boards stand up to this कि यार ये क्या है, why do we have to travel to Dubai, मतलब हम तो टूर्नामेंट खेलने की कंट्री आए हो राइट। तो ऐसे 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 कमेंट्स भी हम सुन रहे हैं। तो इन पॉलिटिक्स से काफी कुछ हो रहा है बट आई यू नो लाइक money is king. So right now BCCI is too powerful. They're doing good work as well. I'm not saying कि कोई गलत मीडियम से आए पैसे, but I think yeah, I hope I don't get a lot of slack for this, but थोड़ा I don't unfair. think there's No, anything you've I said agree, that मतलब एक जितना आप साथ में खेलोगे anyway like more you play better you get right। मुझे लगता है कि मजा ही आता, मतलब like, एक फर्स्ट सीजन में याद है Shoaib Akhtar was playing with KKR and other players like and they were also getting a lot of money as well, so like I think would have been beneficial to both countries। Yeah. What are your thoughts यार about the same? absolutely. Because Indian players are not allowed at PSL. तो आपको क्या लगता है? एक मिनट, is that because, isn't that because के India hasn't allowed them to go rather than के Pakistan doesn't let them? I think it's the other way around. India doesn't let them. तो खैर नहीं India हो। doesn't allow players to go anywhere, तो ये भी है हाँ कि हाँ like हाँ एग्जैक्टली, सॉरी, यस यस यस, मुझे याद है, वो तो कहीं भी नहीं जाने देते। यार क्या ही बात होती, रोहित शर्मा कराची किंग्स के लिए खेलने, विराट कोहली लाहौर अपना लाहौर कलंदर्स के लिए खेलने, मतलब उनको जो रिस्पेक्ट यहाँ मिलनी थी मेरे ख्याल से वो कहते हैं बेटा इंडिया में तो गालियां सुनते हैं हम। सीरियस बता रहा हूँ, लाइक आई थिंक धोनी कहाँ से खेलते हैं? धोनी चेन्नई से तो खेलते हैं इतने सालों से। धोनी पीएसएल धोनी में कहाँ हमारे से खेलते मुल्तान सुल्तान से आ जाते वो यार, एक लाइक मैं बता रहा हूँ हम लोग इनको कैप्टन बना देते हैं यार, लाइक बात वही है। यार देखो, स्पोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ना हैज द एबिलिटी टू यूनाइट पीपल। ठीक है, वी ऑल कम टुगेदर, सिट डाउन इन वन स्टेडियम एंड वॉच अ गेम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। आई थिंक दैट्स व्हाट इट शुड बी यूज्ड फॉर, और इट विल ऑलवेज बी, इट कैन ऑलवेज बी यूज्ड टू, मतलब। और ये देखो ना मेरे पास इतनी, एक जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ब्लड प्रेशर डायबिटीज सब बढ़ जाती है, मतलब आपकी। तो यार वो कहाँ आपको और मिलती है ये चीज, मतलब ये एनर्जी कहाँ मिलती है? तो मैं तो कहता हूँ इसको जितना हम प्रमोट कर सकते हैं और खेल सकते हैं हमें करना चाहिए, एक जिस टूर्नामेंट जो बंद हो गई जो शायद खेल सकते थे हम साथ में वो चैंपियंस लीग, जहाँ पे हम बाकी जगहों की टीम को बुलाते थे स्टार्टिंग में। दैट वुड हैं? हैव बीन द वन प्लेटफॉर्म की जहाँ दो दो टीम्स हर जगह से आगे खेल रही होती। कराची वर्सेस बिल्कुल चेन्नई या कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल बट बिल्कुल। आपने बिलाल क्या एंड मतलब what a way to say right कि sports unite people। तो what a great message कि this has to be the best medium of uniting people and hopefully there will be one day जब हम ये देखें। क्योंकि यश देखो, अक्सर ना हम लोग क्या, आप सुनते हो या बचपन से भी बिन हमारी बुक्स में भी यही बताया गया है, इंडिया ये तो आपके यहाँ भी होगा। लेकिन जब आप देखते हो एक पोस्ट मैच के यार, विराट कोहली खड़े में चार पाकिस्तानी यंग बच्चों को, कुछ यंग यंग प्लेयर्स को गाइड कर रहे हैं, दैट इमेज इन द न्यूज़पेपर कंप्लीटली चेंजेस द वे पीपल, भाई यार इंडिया इंडियन के प्लेयर से बात कर रहे हैं, मतलब ही इज नॉट एन एनिमी। मैं बताना चाह रहा हूँ फॉर क्या है? समबडी हु माइट थिंक कि यार इंडिया बुरा है, या फिर ऑन द अदर वे अराउंड, अगर कोई इंडिया से सोचता है पाकिस्तान बुरा है, दिस इज हाउ यू चेंज द, जो हमें पिछले 70 साल से जो बताया गया ना दिमाग में कि वी नीड टू कीप फाइटिंग ईच अदर, ये ऐसे खत्म होगा कि वी रीडिफाइन दीज थिंग्स। तो खैर, हाँ लेकिन होगा, आई थिंक इंशाल्लाह एक दिन बिल्कुल होगा। विल डू। मेरी जो एक रिग्रेट है ना कि 5 साल में यहाँ बूथ में रहा हूँ, एक क्रिकेट मैच नहीं खेला हम लोगों ने। यार हम वी आर खेलेंगे हम। कोऑर्डिनेटिंग लाइक सलमान एंड अस लाइक लेट्स या जो प्लान यार दैट। वी नीड टू डू समथिंग। अगर आप लोग निकलोगे तो घंटे में पहुंच जाओगे, यहाँ इंडोर खेलते हैं। अच्छा before we get to that I want to say first of all thank you guys. It was really great listening to your insights as a Pakistani fan also. But yeah, अब मैं रिकॉर्ड करूंगा, पॉज रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा, then we can talk. So we're good, right? Yep, thank you। Okay, I'm just gonna थैंक यू यार फॉर